and giving me this opportunity to have over this young, beautiful people around here, young minds in tune with today's times. So today we are going to talk about cyber safety and impact upon teams. I think I'm audible enough. Cyber safety and impacts upon the team and the overall impact upon the Indian economy. Now a bit about me. Next slide, please. Your brain. If the human being is able to understand how the brain works, what are the good foods for brain, what are the good thoughts for brain, healing yourself becomes easy. And that's the need of the hour these days. Next slide, please. So the today's topic is cyber safety. So what do we mean by cyber safety? In one line, if I narrow it down, cyber safety basically means safe and secure use of ICT, information communication and technology. अब उसको safely use कैसे करना है? Generally, there is a saying in English that says that there is nothing for free. There is no free lunches in this world. So if you are getting anything for free, Facebook, Instagram, and all kind of social apps that we are getting for free, that is actually not free. We are the product. Our data is the product. If you analyze, they procure our data, and based upon the data, they show us ads. They show us various demographic, religion, and other things, political opinions. ये सब चीजें आपके elections manipulate होते हैं इस data से. So that is why data is very much important. So what kind of data do we generally share online? We share our name, gender, race, pictures, and family members also, information about them also, friends. Then our choices, likes, dislikes, passwords, addresses, financial details, everything is there online. इसको secure कैसे करना है? ये समझना बहुत जरूरी है. Because data leaks होंगे. जब आप किसी भी साइबर क्राइम इंटरवेंशन ऑफिसर से बात करेंगे तो सबको यही बोलेंगे आपको कि सभी हम सब लोग एटलीस्ट एक या दो बार कहीं ना कहीं हम हैक हो चुके हैं. क्योंकि डेटा आप जितना भी प्रोटेक्ट करें फिर भी कहीं ना कहीं आप इसका टेंशन रहता है कि कहीं ना कहीं आप हैक हो सकते हैं. तो किस तरह की हम लोगों को व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर जो सेटिंग्स करनी है वो कैसे करनी है, जो हमारी प्राइवेसी सेटिंग होगी. The privacy settings that we have to do, the surfing safe browsing practices क्या है. So today we are going to learn about these things. Next slide please. सबसे पहले तो I think everybody has got a mobile and everybody has got data on that mobile. India is the data is much cheaper as compared to the foreign countries. अब वहाँ पर how do we spend our time? Any guesses? Teenagers कितना time spend करते हैं दिन में? बताइए आप लोग करते हैं? मोबाइल के बिना तो जिंदगी नहीं है ना. खाना पीना मोबाइल, पेरेंट्स मिले ना मिले, डेटा मिलना चाहिए. So actually the research says that on an average a teenager spends 1/3 of his day, almost 7.5 hours to 8 hours online. अब ये डेटा ये जो आप ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये ऑनलाइन कहाँ स्पेंड कर रहे हैं आप? If you can see the first is 27% that is the social media. सबसे ज्यादा टाइम एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया पे स्पेंड होता है. नेक्स्ट इज ऑनलाइन गेमिंग, स्पेशली बॉयज बहुत एंथुसियास्ट गेमर्स हैं. सो अराउंड 15% टाइम ऑन गेमिंग, अराउंड 14% टाइम ऑन एजुकेशन एंड स्टडी मटेरियल. ऐसा भी नहीं है कि बच्चे बहुत बदमाश हैं, शरीफ बच्चे भी हैं. एंड देन कम्स नेक्स्ट इज OTT, दैट इज 13% ऑफ द टाइम इज जनरली स्पेंड ऑन OTT एंड वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एक्सेट्रा. Then comes the next 12%, that is browsing on various websites, and finally then AI tools is next 7%. यहाँ तक it accumulates to around 81 to around 88% of the time that is safe browsing. Scams यहाँ भी होते हैं, but it will be safe. Next 10% to 12% of the time that you spend on internet is really dangerous. That is the person, the common thing in that is betting platforms. जितने भी आपने अभी पीछे अब तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं. Team 11, Dream 11, and all kind of things. These were all betting platforms. Then after that is dating apps, always looking for some donate online, cryptocurrency speculations, and finally dark webs. So this accumulates to around 10 to 12%, and this is really dangerous. हमें कैसे सेफ्टी से सर्व करना है इसके बारे में मान रहे हैं. Next slide please. जैसा नीचे कुछ फिगर्स हैं कि सेफ जो टाइमिंग है दैट इज 2 hours टू प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, दैट इज 2 hours अ डे. ये स्पेंड करना चाहिए, बट मैक्सिमम हम सभी लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. ऑन एन एवरेज 83.2% आर स्पेंडिंग मच मोर टाइम देन द प्रिस्क्राइब्ड. नेक्स्ट स्लाइड. अब जब इतना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं तो उसके इम्पैक्ट क्राइसिस क्या है? पहले ये जाने प्रॉब्लम क्या क्या है. तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो है हेल्थ डिटोरिएशन.
हमारे हेल्थ जो है बिकॉज फिजिकल मूवमेंट बहुत कम होता जा रहा है, इसलिए हमारी हेल्थ जो है वो डिग्रेड होती जा रही है फिजिकली। हार्ट अटैक और राइट एवरीबडी नोज दैट, हम लोग वीडियो देख ही रहे हैं, कभी 2.5 साल के, कभी 5 साल के, कभी 17 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। विजन प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ इरिटेशन इन आईज एंड स्पेक्स बहुत जल्दी बच्चों को आजकल लग रही है। नेक, शोल्डर एंड बैक पेन बिकॉज वी आर ऑलवेज लाइक दिस, हम ऊपर की दुनिया तो देखते ही नहीं। एंड देन ओबेसिटी, ऑफ कोर्स लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट, बीएमआई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फाइनली मेंटल हेल्थ क्राइसिस में डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। अब ये क्यों हो रहा है? आर ह्यूमन ब्रेन इज एक्चुअली डिजाइन टू डिटेक्ट नेगेटिव। ये जो आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ बहुत सारे स्लाइड या बहुत सारे डिवाइसेज है, ये बहुत रीसेंट है, 20-50 साल, 100 साल भी मानने लगे हम। हमारी इवोल्यूशन कई हजारों सालों की हुई है। तो वी हैव इवॉल्व, आवर जीन हैव इवॉल्व फ्रॉम द टाइम ऑफ केवमैन। हम लोग केवमैन हुआ करते थे, या हंटर एंड गैदरर वगैरह, हमारा एग्रीकल्चर भी नहीं हुआ करता था। तो उस वक्त जो हमारी जीन थी वो हमेशा हमारा जो दिमाग है वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा देखता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे डेंजर्स होते थे। तो हम नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू पॉजिटिव थिंग्स। तो अब आप एक नेगेटिव थॉट को लेते हैं, दोस्त आपके हैं नहीं, आप लोग ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर हैं, आप किसी से डिस्कस कर नहीं सकते हैं, किसी के साथ कंपैटिबिलिटी बैठ नहीं पा रही है, तो हम उस थॉट को लेकर सोचते रहते हैं। वी बिकम एंशियस, इवेंचुअली दैट एंशियसनेस लीड्स टू डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स। अब दिस सिस्टम अगेन, क्योंकि हम केवमैन और ये सब हैं, तो क्या है कि हमारा एक सिस्टम है, हमारी नींद का एक तरीका है जिसको सिर्काडियन रिदम कहते हैं। दिन निकला तो हम उठेंगे, रात में तो हम सोएंगे। सोने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड मेलेटोनिन। अब जब हम स्क्रीन को 24 घंटे लेके बैठे रहते हैं, बेड में भी लेके बैठे रहते हैं, तो स्क्रीन से एक ब्लू रे इमिट होता है, तो वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि अभी रात नहीं हुई है, अभी दिन है। तो स्लीप जो है आपकी वो डिस्टर्ब रहती है, स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्लीप आवर्स जो है वो अच्छे नहीं है। देन सम सोशल इमोशनल इश्यूज अगेन, हम लोग, हमारे दोस्त ऑनलाइन तो 4-5 हजार है, बट प्रॉब्लम में 2,000 भी नहीं मिलते हैं। सो अगेन क्या होता है, वी आर एक्चुअली सीकिंग वैलिडेशन ऑनलाइन। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक पोस्ट करें और उसके बाद हम 5 मिनट में, हम 2 मिनट में चेक करना स्टार्ट करते हैं कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। अब कमेंट्स अगर 100 आए हैं, वो 100 कमेंट में से 98 है गुड, 2 नेगेटिव है, तो हम 2 नेगेटिव के बारे में सोचते हैं। हम 2 नेगेटिव के बारे में इतनी देर तक सोचते रहेंगे जब तक हम उन 100 की जो वैलिडेशन थी उसको भूल जाएंगे, और ये भूल जाते हैं कि वो 2 नेगेटिव फेक भी हो सकते हैं। फाइनली बॉडी डिस्टॉर्शन, ये हम सब में आजकल बहुत ज्यादा है। टीनेज की क्या बात करूं, बड़ों में भी है, बॉयज गर्ल्स सब में है। मैं थोड़ा सा मसल ज्यादा होती तो अच्छा होता, थोड़ा सा बेस स्किन ज्यादा बेहतर होती तो अच्छा होता, हाइट थोड़ी ज्यादा होती तो अच्छी होती। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट जितनी पिक्चर जिससे हम उनको कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ये फेक भी हो सकती है। आपका भी एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, दैट इज नैनो बनाने का ट्रेंड चल रहा है, आपने शायद देखा होगा, रेट्रो इमेजेस का। अब आप सोचिए, आप उससे अपने आप को कंपेयर करें, दैट इमेज हैज बीन जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर, वो कैमरा से क्लिक ही नहीं हुई है। And we are comparing ourselves with that image, and we are getting into kind of what is distortion and depression. So we need to be aware of these thoughts. Next is brain fog. Brain fog क्या है? सोचने की शक्ति, जो क्लियर थिंकिंग है वो खत्म होती जा रही है। वो क्यों खत्म होती जा रही है? Because stimulation 24/7 है। हम वॉशरूम जा रहे हैं तो हम मोबाइल लेके जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो मोबाइल के साथ खा रहे हैं, तो हमेशा ऑनलाइन हमें स्टिमुलेशन मिलता जा रहा है, रील्स देखते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ब्रेन को सेटल डाउन होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्लियर थिंकिंग का टाइम नहीं मिल रहा। आज एक पेज पढ़ना सबके लिए प्रॉब्लम है। मैं आपको बिठा दूं एक पेज पढ़ने के लिए, तो आप लोग 5 मिनट में एक पेज नहीं पढ़ पाते, क्यों? क्योंकि आपको फिर मोबाइल चाहिए 2 देखने के बाद। सिमिलरली 30 मिनट का वीडियो देखना यूट्यूब पे मुश्किल हो जाता है। दिस इज ऑल ब्रेन फॉग। फाइनली आफ्टर दैट कंसंट्रेशन इश्यूज, एंड जब आप इतना टाइम स्पेंड करेंगे ऑनलाइन तो डेफिनेटली यू आर वल्नरेबल टू साइबर क्राइम्स। इसमें सबसे ज्यादा जो आजकल क्राइम चलता है दैट इज एक्सटॉर्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन। 1800% राइज ओवर दी लास्ट 5 ईयर, और सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं टीनेजर्स। क्यों? क्योंकि आपका जो हार्मोनल रश होता है इस चीज के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है। आपको लगता है आपकी बात को समझता ही नहीं, आपको लगता है आप लोग ही ठीक है, बाकी किसी को कोई नॉलेज नहीं है, तो आप वल्नरेबल हो जाते हैं। वो कैसे होता है आगे आप लोग जानेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दीज आर द मेजर क्राइम कैटेगरी। क्राइम्स बहुत ज्यादा हैं, उनके बारे में बात करेंगे तो शायद 2 घंटे भी कम पड़ेंगे, 45 मिनट इज वेरी लेस टाइम। सो व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज आई ट्राइड टू कैटेगराइज इनटू 5 मेजर कैटेगरीज, एंड इनके आगे सब कैटेगरीज हैं, और इन सब कैटेगरीज में मैं आपको डेफिनेशन नहीं दिखाने वाला, मैं डेफिनेटली ज्ञान नहीं बांटूंगा, बिकॉज आई एम नॉट हियर फॉर गिविंग यू एनी काइंड ऑफ लेक्चर इन टर्म्स ऑफ सीकिंग मार्क्स और समथिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि क्राइम्स क्या हैं, उनको मैं आपको याद कैसे कराऊंगा, आपको छोटी छोटी स्टोरीज सुनाऊंगा साथ में, ज्यादा बड़ी स्टोरीज नहीं सुनाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फिशिंग क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है, आप भूल जाएंगे डेफिनेशन, लेकिन वो क्राइम क्या हुआ था वो आपको याद रहेगा।
जब आपके साथ अगर कोई इंसिडेंस हो तो शायद आप इस स्टोरी को रिकॉल कर पाए और शायद आपको एक रेड फ्लैग मिल जाए कि मुझे यहाँ से चेंज करना है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So the first category of the crime is identification and impersonation crimes. बहुत कॉमन क्राइम्स हैं जैसा हमने आप लोगों ने भी सुने होंगे, देखे होंगे. सबसे पहले आता है प्रोफाइल हैकिंग. मेरा प्रोफाइल हैक हो गया, इंस्टाग्राम का हैक हो गया, व्हाट्सएप का हैक हो गया, या मेरा फेसबुक हैक हो गया, मोबाइल हैक हो गया, लैपटॉप हैक हो गया. बड़ी कॉमन गेम जो सुनते हैं. हैक कैसे होता है? फिशिंग ईमेल भेजी जाती है, आपको लिंक क्लिक करते हैं, उससे आपका मोबाइल हैक हो जाता है. जब तक आप कोई गलती नहीं करेंगे तब तक आपका मोबाइल लैपटॉप हैक नहीं होगा. ये वर्जन विजिबल है. गलती हम करते हैं. हम किस तरीके से करते हैं? हैकर ने कुछ भेज दिया, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा अभी, आपको पता लगेगा हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं. तो ये पहला इंसिडेंट है जहाँ पर अहमदाबाद में एक कपल का डिवोर्स हो रहा था. तो हस्बैंड ने जाके एक हैकर को हायर किया और वाइफ के फेसबुक अकाउंट को हैक करने के लिए बोला. तो उसने हैक कर दिया. हैक करने के बाद उसने वहां से उस अकाउंट के ऊपर ऑब्सीन मैसेजेस डालना शुरू किया, ऑब्जेक्शनेबल फोटोग्राफ डालने शुरू की. ऑब्जेक्टिव क्या था कि वाइफ को उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है ये दिखाया जाता है. फाइनली डॉट टू जोन कोर्स चीजें पकड़ी ही जाती हैं बाद में. सेकेंड इज फेक प्रोफाइल क्रिएशन. फेक प्रोफाइल क्रिएशन क्या है कि अभी तक तो हमारा प्रोफाइल एक था जिसको हैक किया गया. अब एक ऐसा प्रोफाइल है कि आपका अपना ओरिजिनल प्रोफाइल है, आपके 10 प्रोफाइल जरूर बने हैं. ये हमारा कैंट का ही केस है. मेरा फ्रेंड है फाइनेंशियल एनालिस्ट, येस्टरडे पोस्ट में क्या उसके 5 फेक आईडी बने हुए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, और वो लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि फाइनेंस में यहाँ इन्वेस्ट करिए, वहाँ इन्वेस्ट करिए, और बचेगा कौन? वो. सो दिस इज हैपनिंग. अब ये कैसे होता है? आपकी फोटोग्राफ वेरी इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन. जरूरत नहीं है आपका, तो बताइए किस तरह से दिखते हैं तो जनरेट करके आपको दे देगा. उन फोटोग्राफ को यूज करके आपका आईडीज बनाए जाते हैं. उन आईडीज से आपके दोस्तों को क्रेडिट रिक्वेस्ट भेजी जाती है. दोस्त भी क्रेडिट देते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं. फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू होता है. या तो किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट होता है कि पैसे भेज दो या मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा हूँ. तो वन दैट कैन हैव ऑलरेडी हैपेंड. सेकेंड इज थर्ड पॉइंट इज क्रेडेंशियल थेफ्ट एंड बैंकिंग फ्रॉड. बड़ा कॉमन है. ये एक एग्जाम्पल है, मुंबई का है, 23 मई का है. आईआईटी इंजीनियर का अकाउंट हैक किया था. आईआईटी इंजीनियर का एक डॉक्यूमेंट प्रिक्योर की है. कहाँ से प्रिक्योर किए गए? डेटा लीक से. अमेजॉन का डेटा लीक हो गया, डोमिनोज का डेटा लीक हो गया, इस तरह से डेटा लीक होते रहते हैं. ये डेटा सब देखते हैं डार्कवेब से. तो वहां से डेटा को प्रिक्योर किया गया, खरीदा गया, और उसके नाम पे लोन लिए गए. पैन कार्ड मिल गया, आधार कार्ड मिल गया, लोन लेना था. 3 लोन लिए गए, 4 क्रेडिट कार्ड बनाए गए. टोटल 14 लाख का फ्रॉड हुआ. उसको पता भी नहीं था. उसको पता कब लगा? जब फाइनली बैंक वाले उसके बाद आए कि आपकी ईएमआई नहीं आ रही. तो इनसे कैसे बचना है? अपना सिविल टाइम में नहीं चेक करते रहिए. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट इम्पर्सनेशन एंड केवाईसी फ्रॉड. अब ये 3 फ्रॉड जो जहाँ आपने पहले सुने, ये रिलेटिवली ये फ्रॉड थे जहाँ पर्सनल 1-to-1 लेवल पे फ्रॉड हुआ है. जो नेक्स्ट फ्रॉड है ये इतने बड़े स्केल पे है जिसको मैनेज करना मुश्किल है. आप सोचिए, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उन वेबसाइट की रेप्लिका बना दी जाए. तो एक कंपनी है दैट इज कॉल्ड प्रिंट स्टील. इन्होंने 1800 वेबसाइट बनाई गवर्नमेंट की जैसी वेबसाइट, उनकी रेप्लिका. सोचिए 1800 डोमेन. और यहाँ तक नहीं, इसके बाद उन्होंने 2700 रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स बनाए. जैसे आपके सीएससी सेंटर होते हैं फिजिकली ऑफलाइन सीएससी सेंटर बनाए गए. कहाँ बनाए गए? गाँव में बनाए गए, प्लेसेस में बनाए गए. वहाँ पर एजुकेशन कम होता है, लिटरेसी थोड़ी सी कम होती है, तो वो लोग जल्दी आपकी बात मान लेते हैं. उनको बोला गया कि आपके जितने भी इशूज है, जैसे आधार कार्ड पे मुझे एड्रेस चेंज कराना, पैन कार्ड पे जॉब कराना, ये काम हम करते हैं. हमारी फीस भी बहुत कम है, 10 से 50 रुपये, और ये काम हो जाएंगे. Imagine I am walking into a center, I am paying them the fee and giving my own data, and that data is then screwed upon. इन्होंने 1,67,000 ऐसे सच डेटा बनाए. इन्होंने तो फिर भी मेहनत की. अगले अकाउंट जो अगले आप कैमोस में तो उन्होंने इतनी मेहनत भी नहीं की. नेक्स्ट इज सिंथेटिक आइडेंटिटी क्रिएशन. आजकल एआई का जमाना है. आधार कार्ड का डेटा उठाया इंटरनेट से, डार्क वेब से, उन आधार कार्ड के डेटा से पिक्चर्स दी, पिक्चर्स को लेकर उनके पैन कार्ड बना लिए गए. पैन कार्ड और आधार कार्ड, ऑब्वियसली पैन कार्ड फेक है. पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया और बैंक के ई-केवाईसी मेथोडोलॉजी के यूज करके लोन लेने का किए गए. उसके बाद वो लोन इनिशियली छोटे छोटे अमाउंट के लिए गए ताकि वापस किए जा सके, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री बन जाए. उसके बाद इनिशियली लोन ज्यादा अमाउंट के लेने स्टार्ट किए गए, और वो लोन लेने के बाद दे वैनिश्ड. जब 4 करोड़ रुपए के लोन चले गए और ईएमआई नहीं आ रही है, तो बैंक वालों ने फाइल निकाली कि ये लोन किसको दिए गए. दैट पर्सन डू नॉट एग्जिस्ट. अब आप देखिए किस लेवल पे क्या हो रहा है. So that is why now the bank says जब आप लोन लेने जाते हैं, बैंक आपको फिजिकली वेरीफाई करता है. आपकी जगह आता है, आपकी फोटोग्राफ खींचता है, आपके घर के बाहर खड़े करके आपका फोटोग्राफ खींचता है. That is because of these scams. Next slide please. Next is sexual exploitation and harassment scam के टीनेजर्स के साथ बहुत ज्यादा होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं. So मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके साथ कभी भी स्कैम हो, अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो प्लीज टॉक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
सॉल्यूशन है, कुछ नहीं होता, माँ बाप थोड़ा सा डांट देंगे और कुछ नहीं होने वाला, समाज कुछ नहीं कहता, आपको अपनी सेफ्टी सबसे पहले देखनी है। तो फर्स्ट पर्सन फॉरमोस्ट इज साइबर बुलिंग। बुलिंग क्या होती है? कॉलेज में भी होती है, स्कूल में भी होती है। जब ये साइबर स्पेस पे होती है तो उसको साइबर बुलिंग कहा जाता है। अब एक ऐसी टीनेज गर्ल के डॉक्यूमेंट्स को डॉक्स किया, डॉक्सिंग इज जब आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपकी परमिशन के बिना। तो किसी भी इंडिविजुअल की अगर उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन थी वो ली गई और सोशल मीडिया साइट्स पे डाल दी गई और स्कूल के सोशल ग्रुप्स पे डाल दी गई, और फाइनली सब काइंड ऑफ ऑब्सीन मैसेजेस एंड यू कैन इमेजिन ऑल दैट हैपेंड। सो दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ साइबर बुलिंग। ये कैसे चोरी होते हैं हम लोग आगे जानेंगे इसके बारे में। साइबर स्टॉकिंग, जब कोई आपको स्टॉक करता है, स्टॉकिंग कोई आपका पीछा करता है, आपकी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखता है। जब ये ऑनलाइन होता है तो साइबर स्टॉकिंग होता है। ये एक बड़ा पॉपुलर केस था। यहाँ पर जो प्रिपरेटर थे, जो स्कैमर थे, उनका नाम था मिस्टर योगेश प्रभु। उनका एक किसी लेडी के साथ एक रिलेशनशिप था एंड इवेंचुअली दैट रिलेशनशिप didn't materialize, so after rejection he could not handle that rejection, और उन्होंने उनको स्टॉक करना शुरू कर दिया। आप मंदिर जा रहे हो, बहुत अच्छी लग रही हो, आप आज मूवी में गई हो, बहुत प्यारी लग रही हो, पहले तो ये सब चल रहा था। धीरे धीरे उनके फेक आईडीज बनाए गए, धीरे धीरे उनके फेक आईडीज से मैसेजेस करने स्टार्ट किए गए, फोन ग्राफिक डालने शुरू स्टार्ट कर दिए गए। तो ओवरऑल एग्रेसिवनेस बढ़ती गई और डिमांड क्या थी? डिमांड यही थी कि आई वांट यू बैक इन दैट रिलेशनशिप। तो वो नहीं हुआ, इवेंचुअली लॉट ऑफ इट्स ओन गोल्स। Then the next is extortion and revenge porn, very serious crime। ये जो एग्जाम्पल है इसमें बेंगलोर में एक डॉक्टर के, लेडी डॉक्टर के कुछ पिक्चर्स प्राइवेट और इंटीमेट उसके बॉयफ्रेंड ने लीक कर दी है और उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी कंप्लायंस इन फिजिकल एंड फाइनेंशियल टर्म्स। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, एक गोल्डन रूल है, आप सबके अपनी प्राइवेट लाइफ है, लेकिन एक गोल्डन रूल है, आप कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं वो कभी भी डिलीट नहीं होता, वो कभी भी डिलीट नहीं होता। आप सोचे आपने अपने मोबाइल से, आपने अपने फ्रेंड को पिक्चर देखी अपनी, आपने अपने मोबाइल से डिलीट कर दी, उसने भी आप अपने मोबाइल से डिलीट कर दी, बट वो क्लाउड से पड़ी हुई है, वो कभी भी हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिफोर यू डू एनी सच थिंग। कभी भी जो डेटा पर गया है वो फुटप्रिंट कभी डिलीट नहीं होता। नेक्स्ट इज ऑनलाइन ग्रूमिंग। ग्रूमिंग होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर जैसे पौधे को खाद देते हैं, उसको पौधे को बड़ा करने के लिए ग्रूमिंग द प्लांट। सो ग्रूमिंग इज बेसिकली व्हेन यू आर स्पेंडिंग टाइम विद समबडी टू नर्चर दैट पर्सन और टू विन ओवर द ट्रस्ट ऑफ दैट पर्सन। दिस इज अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल, जहाँ पर एक 15 साल की बच्ची, उसकी वल्नरेबिलिटी थी, फादर नहीं थे, सिंगल मदर थी, तो कुछ इमोशनल वल्नरेबिलिटीज उस बच्चे की थी। उस वल्नरेबिलिटीज को सोल्यूशन कहाँ चैट जीपीटी पे ढूंढते हैं, तो सोल्यूशन ढूंढने स्टार्ट की है, वहां से डेटा लीक हुआ। एक आदमी ने उसका डेटा देखा और उसको कॉन्टैक्ट किया और उसके साथ अराउंड 6 से 8 महीने लगा के ट्रस्ट बिल्डअप किया और इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया कि उससे उसके एक्सप्लिसिट फोटोग्राफ्स ले ली और उसके बाद एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया। 15 men were arrested. 15 men were arrested. I don't want to say anything else, but you can imagine what that whole matter was. So again, be very careful. Romance scams, जो सिंगल लड़के लड़कियां अगर कुछ ऑनलाइन या सिंगल इंडिविजुअल्स ऑनलाइन कुछ लाइव ढूंढने की कोशिश करते तो डेटिंग ऐप्स में जाते हैं। अब स्कैमर्स हर जगह बैठे हैं और आजकल स्कैम जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता, पूरा ऑर्गेनाइज लेवल पे होता है। तो एक रिंग था बेंगलोर में, आई थिंक या हैदराबाद में, कहाँ पर एक स्कैम, इट वॉज इन हैदराबाद वाइजैक में, तेलंगाना में स्कैम हुआ। एक इंजीनियर ऑनलाइन ढूंढ रहे थे डेटिंग ऐप पे, उनको एक अच्छा पार्टनर मिल गया और उसके साथ उनका कोऑर्डिनेट हो गया एंड काफी बातें होती रही, ट्रस्ट बिल्ड हो गया। उस पार्टनर ने धीरे धीरे पैसे लेने शुरू कर दिया, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, करते 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 40 लाख रुपए उससे ले लिए और उसके बाद वो वैनिश। बाद में पता लगा कि वो पार्टनर नहीं था, वो इंडिविजुअल, वो एक ग्रुप था, गैंग था, जिसका काम ये था कि फेस इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाए जो कि आप वुमेन अट्रैक्टिव वुमेन के फोटोग्राफ से यूज करते हैं और स्कैम किया जाता है। सो अगेन वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फाइनेंशियल क्राइम टेक यू थ्रू। फाइनेंशियल क्राइम हम सब लोग रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं, ये हो गया वो हो गया। सबसे पहले तो जामतारा तुमने देखा होगा, देखा है ना नेटफ्लिक्स पे जामतारा, व्हाट इज द टैगलाइन? सबका नंबर आएगा, तो सबका नंबर इवेंचुअली आएगा ही आएगा। सो वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट। स्कैमिंग के लिए केवाईसी आपका अपडेट करना है और बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें आती हैं। सेकेंड इज क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड स्कैम। अब यहाँ पर आता है स्किमिंग और क्लोनिंग। स्किमिंग होता है जब आपकी एटीएम मशीन के अंदर कुछ मशीन लगा दी जाती है और आप अपना कार्ड डालते हैं तो वो मशीन आपका कार्ड रीड कर देती है,
कैमरा आता है, वो मशीन लेके जाता है, आपकी कार्ड का क्लोन बना देता है और इसी तरीके से आपसे आपका पिन आईडी ले लेता है और आपका स्कैन होता है। ये तो फिर भी वो मेहनत कर रहा था। तो अगला स्कैम हम देख रहे हैं चंडीगढ़ में हुआ है, सेक्टर 31 में हुआ है। मिस्टर राजेश थे, उनको बैंक से कॉल आता है सपोजली फ्रॉम पीएनबी बैंक, ही सेज दैट आई एम फ्रॉम पीएनबी बैंक एंड आपका क्रेडिट प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तो हम आपको एक इनहांस क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं जिसकी वैल्यू, जिसमें क्रेडिट लिमिट ज्यादा है, नंबर ऑफ क्रेडिट डेज ज्यादा है और बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, मूवी टिकट है। तो मैंने ठीक है दे दो, बैंक आना पड़ेगा, नहीं आपको बैंक नहीं आना पड़ेगा, हम ऑनलाइन कर देंगे। कहते हैं मैं ऑनलाइन नहीं करूँगा, हम वीडियो कॉल करेंगे सर आपको बैंक से। ही कॉल्ड अप दैट फेलो सपोजिटली फ्रॉम अ वीडियो कॉल फ्रॉम अ बैंक, व्हाट्सएप कॉल था, वो बैंक तो नहीं था बट एआई को यूज करके बैंक पीछे बनाया गया था। एंड ही वाज गिविंग एन आइकन, उसने कॉल किया, उसने बोला हम आपका डिटेल ले लिया, अब इसके बाद आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड है वो हमें इसलिए चाहिए बिकॉज हमें आपका क्रेडिट प्रोफाइल बनाना है। उसने अपने सारे क्रेडिट कार्ड दिखा दिए, फ्रंट एंड बैक बोथ, क्लिक होगी पिक्चर। उसके बाद उनको एक लिंक भेजा गया कि आप ये फॉर्म भर दीजिए। वो लिंक बेसिकली क्या था, वो लिंक था कि उनका ओटीपी आपको बाईपास कर लिया गया और टोटल अराउंड 9 लाख रुपीज बहुत स्कैम था घर बैठे बैठे विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिस्ट्री। इतना तक एक लिंक क्लिक किया गया, मोबाइल पे डेटा दिखा दिया। नेक्स्ट इज पॉन्जी स्कीम। आप सब लोग कॉमर्स से आज से बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि मार्केट का एवरेज रिटर्न होता है वो 8 से 12% होता है। ये बहुत गोल्डन प्रिंसिपल है, 8 से 12% का रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। बहुत लॉन्ग टर्म जाने अगर आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आपको 16 से 18% का रिटर्न मिल जाता है ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। बट अगर कोई कंपनी आपको आगे बोले कि मैं आपको 1 साल में 22% का रिटर्न दूंगी, मतलब 22% का मतलब होता है कि 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, 22% का रिटर्न दूंगी या 25% का रिटर्न दूंगी, तो ये रेड फ्लैग है। अब यहाँ पर एक कंपनी भी है, तेलंगाना की कंपनी है, वेस्ट बंगाल की कंपनी है बेसिकली, जिसने वेस्ट बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में 4 साल ये स्कैम किया है और टू द ट्यून ऑफ 1700 करोड़ ये स्कैम किया था। उन्होंने बोला कि हम आपको 22% का गारंटी रिटर्न देंगे। तो लोगों ने पूछा आप कैसे देंगे, वो कहते हैं हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग से देंगे। आपको पता होगा इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होती है, कॉमन के बच्चे हैं एनीबडी? इनवॉइस डिस्काउंटिंग होता है कि मैं कंपनी को, मैंने आपको एक माल बेचा, मैंने आपके नाम एक इनवॉइस दे दिया 1000 रुपए का, आप मुझे पेमेंट करेंगे 90 डेज के अंदर। मैं 90 डेज वेट नहीं कर सकता, बस मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो मैं लेंडर के पास जाऊंगा, लेंडर को बताऊंगा कि ये मेरा इनवॉइस है, क्वार्टर का मैंने रेट दिया, आप चेक कर लो और ये इनवॉइस अपने पास रख लो और मुझे इसके अगेंस्ट पैसे दे दो। तो वो आपको 75% 750 से लेकर 900 रुपए तक 1000 रुपए के ऊपर दे देगा। तो उन्होंने बोला हम ये करते हैं, हमें प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं, तो उस कारण से हमें अमाउंट चाहिए, बहुत सारा कैश चाहिए, हमें बहुत सारा अमाउंट चाहिए, तो जातिफाई ये बिल्कुल थी। पहले इनिशियली जब तक रिटर्न या इन्वेस्टमेंट कम थी, पैसे मिले लोगों को और इंटरेस्ट भी मिला और उनको प्रिंसिपल भी मिला, लेकिन हर एक एलिमेंट में यही होता है कि बाद में जब ये अमाउंट बढ़ता है तो 850 करोड़ लोग ये स्कैम हो गई। बहुत ज्यादा न्यूज लगा पीछे, तो आई थिंक 2024 का 2023 का स्कैम है, 2025 का स्कैम है। नेक्स्ट इज सिम, जो आपका सिम कार्ड है वो या तो डुप्लीकेट इशू करा दिया जाता है या ई सिम बना दिया जाता है। जिनके पास आईफोन होगा उनको पता होगा कि आईफोन में 2 सिम नहीं आते, तो दूसरा सिम कहाँ आता है, ई सिम आता है। तो लोगों की ई सिम का क्रेडिट बहुत बढ़ गया। अब ई सिम में एक कॉल आता है नोएडा के इंजीनियर को कि हम आपको एक ई सिम इशू करवा देते हैं, उसमें कॉल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, उसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होती है और सिम कैरी करने का प्रॉब्लम नहीं है, सिम चेंज करने को इशू नहीं रहेगा, करा दीजिए इशू। अब ये इतने अच्छे मैनिपुलेटर्स होते हैं जितने भी ऑनलाइन स्कैमर्स होते हैं, उसने उसको मैनिपुलेट किया, उसके मोबाइल से 16 डिजिट का EID नंबर होता है। जब आप सिर्फ इसी में कन्वर्ट करते हैं तो 16 डिजिट का एक नंबर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से भेजना होता है, उसने भिजवा दिया। उसके बाद 32 डिजिट का एक कोड भेजा गया, उस कोड में उसका फोन नंबर था। ये कोड जब भेजा गया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसका सिम बंद हो गया और वो जो ई सिम था उसके नंबर में स्टार्ट हो गया क्या वजह। उसने इसके ईमेल आईडी और SMS का बाईपास किया और OTP वगैरह बाईपास किया और स्कैम हो गया टू द ट्यून ऑफ 15 लाख रुपीज। नेक्स्ट इज लोन एंड इंश्योरेंस स्कैम। ये बहुत कॉमन है, लोन चाहिए, हमें रोज कॉल आते हैं, लोन चाहिए सर, लोन क्रेडिट कार्ड चाहिए, लोन चाहिए, आपको दे देते हैं, बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर है आपका, आपको आएंगे कि आपको स्टडी के लिए हम आपको बाहर भेज देते हैं, आपको वीजा दिलवा देंगे। ये बहुत कॉमन स्कैम है। तो वन सच स्कैम का हैपेंड विद वन लेडी, शी वाज अ मैनेजर विद इंश्योरेंस फॉर्म इन कांचीपुरम। उनको एक वो लोन ढूंढ रही थी, अपने लिए लोन देख रहे थे ऑनलाइन। उनको कॉल आता है कि हम ब्रोकर थे, हमारा काम ही है ऑनलाइन लोन दिलवाते हैं, हमने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिए, प्रिपेयर हो गए, आपका लोन पास हो गया है। अब ये लोन आपको डिस्बर्स होने से पहले भी प्रोसेसिंग फी है, फिर ये भी है, वो होगी, फिर होगी, ऐसे करते करते 70 ट्रांजेक्शन हुई, 39 लाख रुपये पर लॉस। थोड़ा सा जुडिशियल होने की जरूरत है। बैंक कभी भी आपके पैसे काट के आपको पैसे नहीं देता,
दैन आपको पैसे देता है, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगाता है. तो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज गेमिंग. सो ऑल द गेमर्स, आई एम नॉट अ वेरी एविड गेमर, तो मेरा थोड़ा सा ये वीक एरिया, बट ऑल द एविड गेमर्स यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. अच्छा, वन मोर थिंग, गेमिंग इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड प्रोफेशन वीक में, बहुत पैसा कमा रहे हैं बच्चे. सो गेमिंग और बेटिंग. अब बेटिंग जो था, बेटिंग में क्या होता है कि आप जैसे आपने ऐड देखी होंगी, अब तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो रोज ऐड आती थी ड्रीम 11 एंड थिंग्स लाइक दैट. आप क्या करिए, आप कुछ पर्टिकुलर बेट लगाइए किसी चीज के ऊपर, आप जीत जाएंगे तो आपके अकाउंट में वो प्रॉफिट जो है वो ऐड कर दिया जाएगा. फिर आप अगली बेट लगाइए, तो वो चलता रहेगा. जो हारेंगे वो पैसा वापस नहीं आएगा. सो अब यहाँ पे फेक बेटिंग प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है. पुणे में एक इंजीनियर को ये नहीं, पहले तो वो उसको इंस्टाग्राम पे आते हैं, आप कुछ भी सर्च करते हैं उसकी एड आनी शुरू हो जाती है सारे प्लेटफॉर्म पे. वो कैसे आती है वो भी मैं आपको बात बताता हूँ. तो आप उसने कहीं सर्च किया बेटिंग के बारे में, तो उसको एड्स वो डिफरेंट एड्स आनी शुरू हो गई. उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, SMS पे एड आनी शुरू होगी. गारंटेड रिटर्न. उसने अप्लाई कर दिया किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे. उस वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, वहां पर एक गेम की वर्चुअल एयरक्राफ्ट, वो एयरक्राफ्ट हवा में रहेगा, कितनी देर हवा में रहेगा, ये बैठ होती है बेस्ड ऑन पायलट एक्सपीरियंस ऑन ऑल अदर फैक्टर्स. तो वहां पर वो बैट की 1000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच में बैट लगानी होती है. इनिशियली जो बैट लगाएगी, जो प्रॉफिट मिले वो जुड़ सके उसके अकाउंट में, वो उसको विड्रॉ कर सकता था. जैसे जैसे बैट अमाउंट बढ़ते गए, विड्रॉल बंद हो गया. सेम यूज विद इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. इन्वेस्टमेंट के भी ऐसी बहुत स्कैम्स कर रहे हैं. विड्रॉल अमाउंट बंद कर देते हैं, आप विड्रॉल नहीं कर पाते. सो अल्टीमेटली आई थिंक ही लॉस्ट अराउंड 39 लाख रुपीज इन दिस गेमिंग. गेमिंग एक एडिक्शन है अपने आप में. हमें लगता है और कर लेंगे बैटिंग इन गेमिंग, ये बहुत एडिक्टिव होती है. तो लगता है अभी हार गया, अगले वाले में जीत जाएंगे, अगले वाले में जीत जाएंगे. और ये मैनिपुलेट करते हैं. आप जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं ऐसा नहीं है, ये आपको मैनिपुलेट करके दिखाते हैं. हमने 100 रुपए लगाए, वो 1000 रुपए बन रहे हैं, आप जीत चुके हो. 1000 रुपए बुरा तो बनाया नहीं आपको. तो आपको लगता है कि आप 1000 रुपए जीत गए, 10,000 रुपए लगाते हो, लाख रुपए बन जाएंगे. वो लाख रुपए कभी विड्रॉ नहीं होंगे. अंडरस्टैंड. सो दिस मनी वॉज लॉस्ट. नेक्स्ट इज इन गेम परचेजेस. अब आप जितने भी बच्चे गेम्स खेलते हैं, सबको पता होगा कि गेम के अंदर कुछ चीजें परचेज की जाती हैं. कुछ पर्टिकुलर जैसे गन परचेज किया या कोई उसने कुछ एक्सेसरी परचेज किया, दैट इज रिक्वायर्ड टू गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द गेम. अब वो एक्सेसरीज बेसिकली कॉइन्स के थ्रू परचेज होते हैं, जिसको यूसी कॉइन्स कहते हैं, अननोन कैश कॉइन्स. ये जो कैश कॉइन्स होते हैं, ये कैश कॉइन्स सिर्फ ऐप से परचेज हो सकते हैं जिस गेम में आप खेल रहे हैं, या उसके ऑथराइज वेंडर से परचेज हो सकते हैं. अब यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या कि इन्होंने कुछ कंपनी थी, उन्होंने अपने आपको एज डेवलपर बताया, और डेवलपर बता के उन्होंने बोला कि हम ये कॉइन्स जो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हैं, और आप ये कॉइन्स परचेज करके आगे गेम में यूज करते हैं. गेम का नाम था BGMI, दैट इज बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया, जैसे आपका PUBG होता रहा. तो उस गेम के अंदर आप कॉइन्स परचेज कर सकते हैं बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस. पहले थोड़े थोड़े प्राइस में परचेज किए गए, वो तो मिल भी गए. जैसे जैसे बेट बढ़ती गई, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता गया, तो क्या हुआ, विड्रॉल्स बंद हो गए. जब विड्रॉल्स बंद हो गए, लोगों ने कंप्लेंट की, उनको थ्रेट किया गया कि आपका जो अकाउंट है वो बैन कर दिया जाएगा. अब एक गेमर जिसने 5 साल लगा के अपना प्रोफाइल बनाया, उनका अकाउंट बैन कर दिया जाए, वो उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजर है. तो उन्होंने बैन रिमूवल फी मांगा, बैन रिमूवल फी दिया गया, लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे ना बैन रिमूव हुआ. बैन तो था ही, होना ही नहीं था. और सेकेंडली जो कॉइन्स थे वो वापस कभी जो पैसे दिए थे वो कभी मिले नहीं. तो द एंटायर दिस कंपनी मैनेज्ड. People lost 2.11 crore rupees over 21 states. Next is account takeover और cheating. अब जब आप गेम खेलते हैं तो उसके अंदर आप कभी मल्टीप्लेयर गेम्स भी खेलते हैं. जैसे ऑफलाइन फील्ड के अंदर ओलंपिक्स होता है, वैसे गेमिंग के अंदर भी लाइव कॉम्पिटिशन होते हैं. पीछे एक नेटफ्लिक्स में वीडियो अभी आ रहा था, मिस मैच, उसके अंदर यही था. उसके अंदर एक जो कैरेक्टर होता है वो गेमर होता है, और वो बड़ी बड़ी गेम्स में जाता है. तो उन गेम्स के अंदर जैसे ऐसा ही कॉम्पिटिशन हो रहा था शंघाई के अंदर. तो शंघाई में वो जो हमारा इंडियन गेमर था, जिसका नाम था फोर्सेकन, उसने एक word.exe करके एक बॉट बनाया. वो बॉट उसने सिस्टम में इंजेक्ट कर दिया, सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए, जिससे उसको फेवर मिल रहा था, बाकी प्लेयर्स को फेवर डिसएडवांटेज मिल रहा था. पकड़ा गया, ऑब्वियसली वो बैन हो गया. इंडियन टीम भी बैन हो गई. कुछ देर बाद वो बैन इंडियन टीम में इंडस्ट्री रिवोक कर दिया गया. नेक्स्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग. वेरी वेरी डेंजरस. गेमिंग इंडस्ट्री में ये सबसे डेंजरस क्राइम है मनी लॉन्ड्रिंग. और ये इतना डेंजरस क्राइम है कि आप अगर पकड़े जाते हैं, आप उस ट्रेल में भी आ जाते हैं तो आपको जेल है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं. मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है, आपने देखा होगा काफी सीरियस आते हैं, उसमें गेम खेल रहे हैं, गेम के अंदर एक दूसरे से बात कर पाते हैं. तो दो आर इंटरेस्टेड मैसेजेस ज्यादा अफेक्ट टू वन अनदर. एंड फाइनली जब आप गेमिंग या बेटिंग के अंदर जब आप प्राइज मनी पे आते हैं, या बेटिंग के अंदर आप बेट्स पे आते हैं, तो जो उनके प्रॉफिट्स हैं
वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में ऐड हो रहे हैं, मंथली को विड्रॉ किए जाते हैं, उसमें टैक्स लगता है। तो इवेट दैट टैक्स एक कंपनी है महादेव वेडिंग ऐप, उसने दुबई में अपना अकाउंट खोला, दुबई की कंपनी रजिस्टर कराई और दुबई और आसपास की कंट्रीज में ये गेम चलाया और जो जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट निकाल के दुबई से रूट किया डॉलर ट्रांजेक्शन से, ताकि टैक्स न लेना पड़े, और वापस इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया, कहाँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। उससे क्या हुआ, प्राइजेस बढ़ गए, जो हर्षद मेहता ने किया था 1990 में, वही इस चीज ने किया, इसने किया, बट थोड़ा आज तक तरक्की के तरीके से। तो इवेंचुअली इट वाज कॉल्ड बाय ईडी। व्हाट इज द टाइम लिमिट कितना? हाउ मच टाइम? आई हैव मोर। देन फाइनली एआई इनेबल्ड क्राइम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्राइम है। एक केरला में रिटायर्ड एम्प्लॉय को फोन आया, फोन उसके फ्रेंड से था, फ्रेंड का वीडियो कॉल था, फ्रेंड थोड़ा ट्रबल दिख रहा था, ट्रबल I have been given 10 more minutes, so I'll rush further. So, जो क्राइम था केरला वाला, उसमें कॉल आया सामने से उनको, और फ्रेंड का ही कॉल था, 40,000 मांगे उन्होंने दे दिए। जब बाद में पता लगा कि वो फ्रेंड का कॉल नहीं था, वो एआई जनरेटेड कॉल था। एआई ने कहाँ से जनरेट किया, जो आपकी पिक्चर अवेलेबल है ना सोशल मीडिया पे, और कहीं आपका कोई वॉइस सैंपल, आपने कोई वीडियो डाल दिया जिसमें आप बात कर रहे हैं, वो दोनों लेके आपका क्लोन क्रिएट किया जा सकता है। तो एआई कितना एडवांस हो चुका है। नेक्स्ट टू आई एम स्किपिंग। अच्छा, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको, क्राइम एज अ सर्विस। आप लोगों ने आज तक फ्रेंचाइजी सुनी होंगी, स्कूल रन करते हैं, स्कूल की फ्रेंचाइजी होती है, होटल की फ्रेंचाइजी होती है, क्राइम की भी फ्रेंचाइजी होती है। आजकल क्राइम की भी फ्रेंचाइजी दी जाती है, रैंसमवेयर दिए जाते हैं, नॉन टेक्निकल लोगों को दिए जाते हैं, उनको बोला जाता है कि आप अपने सेटल में रैंसमवेयर को भेजिए, 70-30 में जो भी मिलेगा उसमें 70-30 में डिवाइड कर लेंगे, 70 हमारा सबकी आता है, आपको कुछ नहीं करना, बना के हमने दिया। तो ये रैंसमवेयर क्या करते हैं, ये आपके कंप्यूटर या सिस्टम में जाते हैं, उसको लॉक कर देते हैं, आपकी एक्सेस जो ऑथराइज एक्सेस होती है उसको बंद कर देते हैं। ये पर्सनली हमारे घर में हो चुका है, बट ये था कि बेटर ये था कि हम लोगों ने बैकअप रखा होता तो हम बच गए, रैंसमवेयर देना नहीं था। नेक्स्ट इज डार्क वेब। नेक्स्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि वेब के कितने पार्ट हैं, इंटरनेट के कितने पार्ट हैं। इंटरनेट के 3 मेजर पार्ट है। पहला है सर्फेस वेब, गूगल, सोशल मीडिया, जो कुछ आप देखते हैं, दैट इज ओनली 1% ऑफ इंटरनेट। सेकेंड इज 90 to 95% ऑफ द इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड डीप वेब। जितनी भी बैंकिंग साइट है, जितनी भी बड़े बड़े गवर्नमेंट के साइट हैं, रजिस्ट्री के, ट्रेजरी के, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े हैं उनके, लाइब्रेरीज जो डिजिटल जगह रखती है, वो सब आता है डीप वेब में। नेक्स्ट इज डार्क वेब, लेस देन 1%, दिस इज रियली डेंजरस। डार्क वेब को आप गूगल सफारी से या क्रोम से या फायरफॉक्स से एक्सेस नहीं कर सकते, उसके अलग ब्राउजर्स होते हैं, टोर या अनियन ब्राउजर्स होते हैं, इसके थ्रू करते हैं। उसको अनियन क्यों कहते हैं, क्योंकि अनियन की लेयर्स होती हैं, एक लेयर निकाली, अगली लेयर, एक लेयर निकाली, उससे अगली लेयर, उससे अगली लेयर। तो जो अनियन ब्राउजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके आईपी एड्रेस को जंप कराते रहते हैं। तो वो जंप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो डिटेक्ट नहीं होता कि कहाँ से है। आप लोगों ने सीरीज में देखा होगा बहुत ज्यादा। तो दिस अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन डार्क वेब। अब इसको करने के लिए जो भी इंटरेक्टिव मैसेजेस होते हैं, आपने अभी सीरियल में ये भी देखा होगा कि डार्क वेब में चीजें परचेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं दूसरे से, वो इतने ज्यादा एनोनिमस होते हैं कि जिसने वो प्लेटफॉर्म बनाया उसको भी नहीं पता होता कि ये आपस में क्या कम्युनिकेट कर रहा है। सो इसका यूज क्या, इसको बनाया ही क्यों गया, जरूरत ही क्या थी क्राइम बनाने की, तो इसकी कुछ लेजिटिमेट यूज भी है। जब एक ऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहाँ बोलने की आजादी नहीं है, तो वहाँ जो भी लोग कुछ अपना कम्युनिकेशन बाहर भेजना चाहते हैं वो डार्क वेब को यूज करके भेजेंगे। कोई विसल ब्लोअर है, आज अगर किसी की चीज का क्राइम का विसल ब्लोइंग करते हैं तो उसकी जान को खतरा है, तो वो इंटरनेट पे जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, तो वो डार्क वेब पे जा रहा है। इसी तरह से जितने जर्नलिस्ट हैं वो ऐसा कुछ डेटा डालना चाहते हैं, कोई क्राइम स्टोरी डालना चाहते हैं, जो वो डिटेक्ट कर रहे हैं, जो वो फाइंड आउट कर रहे हैं, वो सब चीजें वो इंटरनेट पे डालते हैं। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज क्या है, इलीगल मार्केट प्लेस, सारे टाइप के क्राइम इंटरनेट पे होते हैं, डार्क वेब पे होते हैं, हर तरह का क्राइम होता है। यू नेम इट यू गेट इट। व्हेन वी वर ट्रेन, आईटेक का जब हमारा ट्रेनिंग हुआ था, हमें बताया गया था कि आजकल 50 रुपए की ड्रग भी मिलती है डाल, एज चीप एज 50 रुपीज यू गेट अ ड्रग ऑन डार्क वेब। अमेजॉन का कोरियर शायद नहीं मिलेगा, डार्क वेब का कोरियर 100% मिलेगा। दैट इज द कल्चर, जितना स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, गलती से भी मत जाइए डार्क वेब पे, क्योंकि हम लोग नॉन टेक्निकल लोग हैं। अगर हम डार्क वेब एक्सेस करते हैं तो हमारा डेटा ही चोरी हो जाएगा और हम ही किसी इलीगल एक्टिविटी में फंस जाएंगे। आपने कुछ परचेज कर लिया, वो ट्रेल कहाँ गया है वो तो आपको नहीं पता, वो पैसा कहाँ गया है, उसका क्या ट्रेल था। एंड ऑफकोर्स जो एनफोर्समेंट एजेंसी होती है वो ध्यान रखती है इन चीजों का, तो अल्टीमेटली आप पकड़े जाएंगे। अगर आप पकड़े गए तो आपका करियर खत्म है। सो इवन कैजुअल ब्राउजिंग इज अ बिग नो ऑन डार्क वेब। अब मैं बहुत इनमें से कुछ गलती ना करें, ये 7 इमोशनल उसके टैक्टिक्स हैं जो यूज करते हैं। सबसे पहले ग्रीड,
आपको इतना प्राइस मिल गया, अरे मैंने तो प्राइस अप्लाई ही नहीं किया था, मुझे कहाँ से मिल गया प्राइस, मुझे $1000 मिल गया है, आप अप्लाई कर दो, अभी क्लिक कर दो। ग्रीड प्लस अर्जेंसी, नेक्स्ट इज फियर प्लस अर्जेंसी। आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा, आपका रोल नंबर कैंसिल हो जाएगा, आपका फिजिकल कनेक्शन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। डिजिटल वेस्ट में यही होता था, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी एजेंसी अगर आपको ऐसा कोई धमकी देती है तो डेफिनेटली रिप्लाई। नेक्स्ट इज अर्जेंसी, अभी क्या अभी रिप्लाई कर दो, नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगी। डेफिनेटली रिप्लाई। आप अपना टाइम लीजिए, स्टेप बैक, थिंक अबाउट इट एंड देन ओनली अप्लाई, नॉट डू दैट। नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी, I saw your photograph, I can't believe it is you. Click on the link to see. अगले, ये हमारे को भी आया था, मुझे भी आया था, मैंने भी किया था। फेसबुक पे आता है, कुछ बहुत ज्यादा चला था ये कि I can't believe it is you, see this, and I clicked on it. Then मेरा मोबाइल हो गया है, तो मुझे मोबाइल रिसेट करवाना पड़ा। Then अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, डिजिटल एड्स में ये होता है, सीबीआई से बोल रहे हैं, ईडी से बोल रहे हैं, हमें रोज फोन आते रहते हैं, तो हम बोलते हैं थैंक यू, एटलीस्ट हम इतने तो बड़े हो गए कि सीबीआई और ईडी हमें हमारे लिए ध्यान रखेगी। नेक्स्ट इज लव एंड अटैचमेंट। ऑफ कोर्स पहले आपके साथ ट्रस्ट बनाया जाता है और फिर अल्टीमेटली आपको आपसे पैसे निकलवाए जाते हैं। गिल्ट एंड ऑब्लिगेशन, आजकल बहुत सारी आपको देखते हैं, ये एडमिट है हॉस्पिटल में, इसकी हेल्प करो, नहीं हेल्प करोगे तो मर जाएगा, डोनेशन करो। अरे वो डोनेशन कहाँ जा रही है? जिसने डोनेशन देनी होगी उसका एक प्रॉपर चैनल होता है, हर दूसरा वेबसाइट डोनेशन के लिए नहीं होता है। देन प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी फॉर द स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉज टू थिंक एंड वेरीफाई। जब कभी ये जितनी स्टोरी सुनाई है वो इसलिए सुनाई है कि आपको जब ऐसा कोई सिचुएशन हो, जस्ट पॉज एंड थिंक। और आप वापस कॉल करोगे ना स्कैमर कभी फोन नहीं करता, आपको कॉल करेगा, आपको आपका कॉल कार्ड देगा या आंसर नहीं करेगा, फिर आपको कॉल करेगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, ओके। टॉप फिशिंग रेड फ्लैग्स जो मेल्स आती हैं वो कैसे डिटेक्ट करेंगी ओरिजिनल है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। सबसे पहले तो जेनरिक मेल आएगी आपको, डियर स्टूडेंट, डियर ऑल। अरे भाई जब प्रॉब्लम आपके तो आपके नाम के साथ आनी चाहिए, उसके पास आपका नाम ही नहीं है, दैट मीन्स इट इज फेक। नेक्स्ट इज सस्पिशियस सेंडर एड्रेस, स्टूडेंट डायरेक्ट सपोर्ट एट gmail.com। अरे जब यूनिवर्सिटी आपको मेल भेजी तो अपनी डोमेन से भेजेगी, जीमेल से क्यों भेजेगी? तो दीज आर कॉमन सेंस थिंग्स दैट वी नीड। होता क्या, हम अर्जेंसी क्रिएट करके फटाफट एक्शन लेते हैं, वो ही नहीं लेना, उसी को रोकना है। देन फाइनल नेक्स्ट इज पुअर ग्रामर, पढ़िए इसको शायद अगर आप पढ़ पा रहे हैं। योर अकाउंट आर सस्पेंड, प्लीज वेरीफाई इमीडिएटली। जेटली में ई गायब है। जितनी भी आपकी वेबसाइट होगी, ये जो मैसेजेस होंगे, इनमें 110% वाली मिस्टेक होगी। क्यों? क्योंकि 12वीं पास और या शायद उससे भी कम लोग आजकल ये स्कैम्स कर रहे हैं, नौकरियां मिलने नहीं है, तो स्कैमिंग इज अ वेरी गुड प्रोफेशन। कर लो, पकड़े तो जाएंगे नहीं, या पकड़े जाएंगे तो 2 दिन जेल में रहेगा, आदमी क्या फर्क होगा। नेक्स्ट इज अर्जेंसी एंड टैक्टिक्स, एक्ट नाउ योर अकाउंट विल बी लॉक्ड। जब भी कोई अर्जेंसी आए, कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है, टेक योर टाइम, 1-2 दिन लॉक हो जाएगा, फिर जाएगा, क्या ऑफर आ रही है। अगर वीडियो वेरिफिकेशन कर जाएगा, आ जाएगा दोबारा, क्या प्रॉब्लम होगी। देन कम्स रिक्वेस्टिंग फॉर सेफ्टी, आपका सेंसिटिव डाटा ये कोई भी नहीं देता, कोई एस्टिमेट वेबसाइट नहीं देती, प्लीज डोंट गिव सेंसिटिव डाटा। टू ऑफर्स टू गुड टू बी ट्रू, ये मिल गया, वो मिल गया, अगर अप्लाई नहीं किया तो कैसे मिल गया। सो दिस आर रेड फ्लैग। ये जो मैंने लास्ट में लिखा है बहुत जरूरी है। जितनी भी ऐसी मेल्स आती हैं उन पे लोगोज देखिए, वो लोगोज कभी भी ओरिजिनल लोगोज नहीं होते, उनका कलर थोड़ा सा फर्क होगा। अमेजोन का लोगो आएगा तो अमेजोन का एक का जो तरीका है वो कुछ और होगा, टाटा का लोगो आएगा तो टाटा का ग्रीन का लोगो दिखा देंगे वो। अब उनके लोगोज जो होते हैं, ब्रांडिंग जो होती है, वो कभी भी क्लियर नहीं होती है। तो दिस इज अ बिग रेड फ्लैग। एंड सेकेंडली, जब आपको ऐसी कोई लेटर आती है तो उसको पढ़िए। वो लेटर कभी भी ऑथराइज जो अपना प्रोफेशनल तरीका होता है उसके तरीके के साथ नहीं होती है। आजकल थोड़ा सा जस्टिफिकेशन हो गया है, बट अदरवाइज वो नहीं होती। नेक्स्ट, वेबसाइट जज कीजिए, वेबसाइट कैसे फेक है ये पता लगेगा। अब इंडिया में जो वेबसाइट है एजुकेशन से रिलेटेड, स्पेशली वो .edu.in में एंड होती है या .ac.in में एंड होती है। .com, .net, .org, .education, .this, ये वैलिड वेबसाइट नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, चेक करिए। उन पे जो इन्फॉर्मेशन, अगर कॉलेज की कोई वेबसाइट बनी हो तो उस पर इन्फॉर्मेशन होगी, उस इन्फॉर्मेशन को लिंक्डइन पे जाके चेक करिए। Suppose a professor's name has been given and his contact details have been given. Go and check it on the LinkedIn. That professor might be available on LinkedIn. You'll get to know good phone number ठीक है कि नहीं है। Look for language. जो वेबसाइट बनी होती है उसमें 1000 गलतियां होंगी, डेफिनेट 110%, क्योंकि ये लोग एमेच्योर होते हैं। तो आप जो भी सपोज आप जेमिन वाली की वेबसाइट है तो वो प्रोफेशनली डिजाइन वेबसाइट है, वो कई दफा ने चेक की है, वो प्रोफेशनली बनाई है, उसमें गलतियां नहीं होंगी। जो जेमिन कॉलेज की वेबसाइट गलत होगी, जेमिन कॉलेज .ambala.cds कुछ भी होगा वो, तो वो डेफिनेटली गलत होगी। देन अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस,
अगेन गेट योर डिग्री इमीडिएटली, बिना एग्जाम दिए नंबर पास हो जाओगे, ये सब चीजें वैसे तो यूनिवर्सिटी करती नहीं है, और अगर करेगी तो डेफिनेटली वो कभी इसको एडवर्टाइज नहीं करेगी, नहीं तो यूनिवर्सिटी इसको उसकी उसका एक्रेडिटेशन कैंसिल कर देगी, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकती है, ये हो ही नहीं सकता। देन सस्पिशियस मेथड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सब कुछ देखिए, आपको दिख लगा, आपने पेमेंट पे जाके क्लिक किया, वो कहता है कि क्रिप्टो करेंसी में पे कर दो, वो कहता है कि आप हमें कैश में पे कर दो, आप हमें गिफ्ट कार्ड में पे कर दो, यूनिवर्सिटी कभी ऐसे पैसे नहीं देती। एंड फाइनली HTTPS, ये तो बहुत कॉमन है, HTTPS देखिए, HTTP इज नॉट सेफ, एसएनएस सर्टिफिकेट नहीं है, HTTPS होना चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट मेथोडोलॉजी, हाउ टू, नेक्स्ट टाइप प्लीज। ये बहुत आसान से कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा नीचे कर दीजिए। सबसे पहले तो अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इसको एनेबल कीजिए, जितनी भी आपकी सोशल मीडिया वेबसाइट है सब पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको बोलेगा, ऐप का नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर, वो ऑटोमेटिकली आपको बोलेगा कि आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना है। इसका फायदा क्या है, आपका फेसबुक आईडी से लॉगिन कर दिया, लेकिन जब तक उसके पास आपका डिवाइस नहीं है वो आपका अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, प्लीज डाउनलोड करिए, उसको एक्टिवेट करिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करिए, टाइम नहीं चेंज करते रहिए। जब आप किसी भी बैंकिंग पासवर्ड बैंकिंग साइट पे जाते हैं 3 महीने के बाद वो आपका पासवर्ड चेंज कराता है, वो बैंक वाला खुलाने को नहीं कराता, उसने क्या किया, उसने पासवर्ड मैनेजर टूल डाउनलोड किया हुआ है, या आप अपने लिए भी कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने पासवर्ड खुद भी चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल प्राइवेट रखिए, बहुत कॉमन है। लिमिट टैगिंग, क्योंकि आपके अकाउंट में डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग होंगे जो डॉक्यूमेंट होंगे या बॉट्स होंगे, तो आप जब टैग कर रहे हैं अपने फोटोग्राफ, उनको ही टैग करिए जो आपके लाइक या देख रहे फ्रेंड्स हैं या जिनके साथ आपका एक्टिव कम्युनिकेशन है। लोकेशन शेयरिंग को डिसेबल कीजिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट OTP वगैरह मत शेयर कीजिए। अर्जेंटली जब भी अर्जेंट या अर्जेंसी दिखाई जाए तो उसको कॉल कीजिए, जैसे केरला वाला केस था, अगर वो उस केस में वापस कॉल कर लेता तो स्कैम नहीं होता, तो वेरीफाई करो, कॉल बैक करो, स्कैमर तभी आपका फोन नहीं उठाएगा, जो जेन्युइन जिसके नाम से फोन आया वो आपका फोन उठा लेगा। देन फाइनली अपने जो भी आपके अकाउंट्स हैं उसको रेगुलरली मॉनिटर करिए, अपना नाम डालिए गूगल के ऊपर, अपना ईमेल आईडी डालिए गूगल के ऊपर, बोलिए सोशल मीडिया साइट ब्लॉग मेरी कितनी है, आपको सारी साइट बता देगा, कितनी फेक है कितनी जेन्युइन आपको पता लग जाएगा। आपका सिबिल स्कोर होता है, हर एक का एक सिबिल स्कोर होता है, सिबिल स्कोर डालिए, सिबिल स्कोर पे चेक करते रहिए, बैंक के साथ आज का सिबिल स्कोर लिंक होते हैं, आपको पता लग जाएगा अगर आपके नाम कोई लोन तो नहीं लिया गया। गवर्नमेंट की एक ऐप है जिसको संचार साथी कहते हैं, संचार साथी में क्या होता है कि वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड डालिए या अपना पैन कार्ड डालिए, आपके नाम से जितने सिम लिए गए वो सब पता लग जाते हैं, तो कुछ मेथोडोलॉजीज हैं जहाँ से पता लग जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ ऐप्स हैं जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों को डाउनलोड करने के लिए। ये ऐप्स बहुत अच्छी ऐप्स हैं एंड इट प्रोटेक्ट्स यू अ लॉट। सबसे पहले तो मूवी आर्पर ऐप है, मूवी आर्पर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके पूरे मोबाइल को स्कैन करता है, जो भी आपके पासवर्ड लीक हुए हैं उसके बारे में बताता है, जो आपके ऐप्स जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं वो कितने सेफ हैं कितने सेफ नहीं है ये उसके बारे में बताता है। अगर वो सेफ नहीं है तो उनको रेड मार्क करता है, अगर वो रिलेटिवली सेफ है तो उनको ऑरेंज मार्क करता है। वेबसाइट जो आप एक्सेस करते हैं डाउनलोड करने के बाद जब आप मोबाइल से वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है बताता है, QR कोड जेन्युइन है या नहीं बताता है, वाईफाई कनेक्शन जिसके साथ आप लिंक करना चाह रहे हैं अपने मोबाइल को वो जेन्युइन है कि नहीं वो बताता है, साइबर क्राइम्स की आपको अपडेट आती रहती है। टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस है, आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सब तो इसमें है कि वायरस से बचाता है, रैंसमवेयर से बचाता है, बट इसमें एक बड़ा अच्छा फीचर है, आप अपनी ऐप्स को लॉक कर सकते हैं। ऐप को लॉक करने के बाद अगर कोई आपका फ्रेंड उस ऐप को खोलना चाहेगा तो उसकी फोटोग्राफ क्लिक हो जाएगी और आपको ईमेल पे उसकी फोटोग्राफ आ जाएगी, तो चोर पकड़ा जाएगा, स्पेशली दोस्ती में। सो देन फाइनली ट्रू कॉलर इतनी सेफ ऐप नहीं है, बट ट्रू कॉलर से एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि सामने वाला कौन है जो कॉल कर रहा है, या आप उसका नंबर सर्च कर सकते हैं, बट 100% सेफ ऐप नहीं है। देन फैमिली लिंक, गूगल फैमिली लिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं तो पेरेंट अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चे के मोबाइल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पूरा ट्रैक कर सकते हैं, वो कहाँ गया लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, वो किन वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है ट्रैक कर सकते हैं, कितना उसका स्क्रीन टाइम है एक्सेस कर सकते हैं, ऐप मैनेजमेंट को आप मैनेज कर सकते हैं। संचार साथी मैंने बताया था, संचार साथी में अगर आपका मोबाइल गुम जाता है तो आप मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं संचार साथी में अपना मोबाइल नंबर और IMEI नंबर डाल के, आप अपना IMEI नंबर डाल के ये भी देख सकते हैं कि जो फोन आपने खरीदा है वो जेन्युइन है या नहीं है। एंड फाइनली आपके नाम पे कितने मोबाइल हैं या सिम्स हैं ये सब संचार साथी से पता लग जाता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए 2 ऐप्स हैं जिसका नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर एंड गूगल ड्यू मोबाइल। एंड फाइनली अगर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, समय पैसे लग रहे हैं, मन नहीं है कुछ करने का, तो सिंपल एक गूगल एक्सटेंशन है प्राइवेसी बैजर, ये डाउनलोड कर लीजिए, टोटली फ्री है।
एक्सटेंशन है, टोटली फ्री है, इसको तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले तो आपको जो हिडन ट्रैकर है ना, जब आज आप गूगल पे जाते हैं मोबाइल का ऐड सर्च करते हैं, आपको वही मोबाइल का ऐड, डिफरेंट मोबाइल के ऐड आपके फेसबुक पे आने शुरू हो जाते हैं, आपके इंस्टा पे आने शुरू हो जाते हैं, आपके ईमेल पे आने शुरू होते हैं, कैसे आने शुरू हो जाते हैं। वहां पर एक ट्रैकर लगा हुआ है, जो ट्रैकर आपको जज करता है ये क्या देख रहा है और इसके कितने लिंक्ड मोबाइल पेजेस हैं, वो सब पे वो भेजना शुरू करता है। तो ये जो आपका प्राइवेसी मेजर है, ये उस मोबाइल ट्रैकर को रिस्ट्रिक्ट करता है, हिडन ट्रैकर को, और आपकी प्राइवेसी जो एनहांस करता है। ये मैं टिप करूँगा इंस्टाग्राम का, बिकॉज ये मुझे लगता है आपको मेरे से ज्यादा बेटर पता होगा और जो चीजें बताने वाली। फाइनली नेक्स्ट स्लाइड, इम्पैक्ट अपॉन सोसाइटी और इम्पैक्ट अपॉन इकोनॉमी। मुझे पता आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग फ्यूचर सिटीजन हैं और आप लोगों को ये डील करना है, आपको समझना जरूरी है, इसी में आपका करियर है। सो अभी साइबर क्राइम का इम्पैक्ट क्या है? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो ओवर लास्ट 3 ईयर 7.08 लाख करोड़ रुपीज जीएसटी का टैक्स एविजन हो गया है। ऑलमोस्ट हमारा जो जीडीपी है उसका ये अराउंड 1% बन जाता है कम्युलेटिव में। इसी साल सिर्फ इसी साल में पिछले 6 महीने हुए हैं, इसी साल के अंदर 1.2 लाख करोड़ है ऑलरेडी बीन लॉस्ट टू साइबर क्राइम्स, दैट इज 0.7% ऑफ आवर जीडीपी। और जब इसको हम कम्युलेट करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, तो 0.3 से 0.5% हैज बीन लॉस्ट ऑफ जीडीपी हैज बीन लॉस्ट ओवर द लास्ट 3 इयर्स। इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है? डायरेक्ट मनी लॉस। आप लोग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हैं, अगर मेरे साथ साइबर स्कैम होगा, मेरे पास पैसे नहीं होगा, जब मेरे पास पैसे नहीं होगा तो मेरी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, पूरा इकोनॉमिक का साइकिल, डिमांड सप्लाई का डिस्टर्ब हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द कंपनी ने अपने रिजर्व फंड रखे थे, कॉन्टीजेंसी फंड रखे थे टू फॉर ग्रोथ, वो कॉन्टीजेंसी फंड रैंसम वेयर में देना पड़ता है, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा? सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब होगा, मेरी वेबसाइट ही बंद हो गई है, मेरी फैक्ट्री ही बंद हो गई है, मैं प्रोड्यूस कैसे करूंगा? अब आप सोचो इसका ब्यूटी कितनी कनेक्टेड है ये चीजें। जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है तो वो ट्रकर भी डिस्टर्ब होता है, जो ट्रक चलाता है उसका तो कोई लेना देना नहीं इंटरनेट के साथ, लेकिन वो भी डिस्टर्ब होता है बिकॉज पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब हुआ है। फिर इमीडिएट पैनिक बनता है जब हमने इतनी बातें सुन ली। आज तो हम लोग कुछ लोग होंगे ऐसे जो स्मार्ट होकर कहेंगे मैं तो करूँगा नहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मैं तो कैश में ट्रांजेक्शन करूँगा। तो क्या होगा, जो हम पुश कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने का, वो सफर करेगा, हमारा ट्रस्ट कम होता है ऑनलाइन इकोनॉमी में। सिर्फ हमारा ही कम नहीं होता, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उनका भी कम होता है। तो डेफिनेटली ये अपने आप में एक प्लान अटैक होते हैं। आजकल अटैक जो है वो फिजिकली जाके लड़ाइयाँ नहीं होती, वो बहुत कम होती है, आजकल साइबर अटैक्स होते हैं। देन लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मैसिव ड्रेन ऑफ इकोनॉमी, 1% ऑलमोस्ट हम लूज कर चुके हैं, ग्रोथ हमारी सफर कर रही है, ई कॉमर्स की वेबसाइट सफर कर रही है, उनकी ग्रोथ सफर कर रही है, कम्पिटिटिव एज हम एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लूज कर रहे हैं। जो ₹1 लॉस होता है ना साइबर क्राइम, उसका 3 से 5 रुपए का इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी में, इसको कहते हैं कास्केडिंग इम्पैक्ट। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा एज एन इकोनॉमिस्ट में। अब ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है बैंकिंग सेक्टर में। इस साल प्रोजेक्टेड है कि बैंकिंग सेक्टर 80 to 100 करोड़ रुपीज यूज करेगा, और जो ई कॉमर्स सेक्टर है वो 50 करोड़ रुपीज यूज करेगा। और स्टॉक में, मार्केट में और गोल्ड में आप अभी देख रहे हैं कितनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। फाइनली ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट था, नेक्स्ट स्लाइड, ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट था। अब इनडायरेक्ट, अगर ये पैसा लॉस ना होता तो कहाँ जाता? ऑब्वियसली डेवलपमेंट में जाता, स्कूल बनते, हॉस्पिटल बनते, हमारी ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होती, हमारा रेल एंड रोडवे का नेटवर्क इंप्रूव होता, हमारा सोशल वेलफेयर स्कीम्स ज्यादा बेटर होती, हमारा कल्चरल एटमॉस्फेयर इंप्रूव होता, शायद हम टूरिज्म इंप्रूव कर पाते। हाउ मेनी मिनट्स? So next slide. This is the last slide. I'll quickly go through it. Next slide. This is the slide. थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव है, एक सोशल मीडिया पेज है, उसको प्लीज आप लोग लाइक कर लीजिए, साइबर जोन I4C। आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा, इसको फॉलो कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग्स बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं, आपको अपडेट रखेंगे जितने साइबर क्राइम हो रहा है उसके बारे में। 1390 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, रिपोर्ट कर सकते हैं। NCRC का cybercrime.go.in, ये इसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्कैम होते हैं, स्कैमर का आपको मेल आएगा कि वी आर मेलिंग यू फ्रॉम cybercrime.net.gov.in। आपका करंट पकड़ा गया है, वो .net तो था ही नहीं, ओरिजिनल तो gov.in था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी मन की बात में डिजिटल के बारे में बात की है, कॉलर कैंपेन भी रन की गई है। तो ये तो सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे। नीचे आए थोड़ा सा। अब होता है ना कि जहां प्रॉब्लम होती है वहां अपॉर्चुनिटी भी होती है, तो ये अपॉर्चुनिटी आती है। 25% ग्रोथ है सेक्टर में, तो उतनी ही रिक्वायरमेंट है साइबर क्राइम ऑफिसर्स की या साइबर क्राइम एक्सपर्ट की। टोटल 10 करियर्स है, मैंने सिर्फ 4 मेंशन किए हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। साइबर रिस्क एनालिस्ट होता है, स्टार्टिंग जॉब आप देख सकते हैं 6 लाख से 8 लाख रुपए की सैलरी मिलती है पर एनम। साइबर सिक्योरिटी का इकोनॉमिस्ट होता है, उनको 7 लाख से 9 लाख की सैलरी मिलती है। ब्लॉकचेन एनालिस्ट होता है, फोरेंसिक इकोनॉमिस्ट होता है। आपको इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड होना चाहिए,
और आपको साइबर का नॉलेज होना चाहिए। आप लोग ऑलरेडी इकोनॉमिक स्टूडेंट हैं, साइबर का थोड़ा सा सीख लीजिए, तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज़ों के एलिजिबल हो जाएंगे। इनकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट टू मैन एंड दिस आई हैव प्रोक्योर्ड फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही इज अ टेररिस्ट एनालिस्ट, सो आई विल अरेंज द डिटेल्स कि इनके आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या हो सकता है। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर being such a patient listener। ऑल्सो बातें चल रही थी बट कोई उठ के नहीं गया, तो हमसे छोटे बच्चों को नहीं करते, वहाँ को बिठा सकते हैं डाले, आपको तो डाटा नहीं है। So otherwise, I think I must have learned something. That is why you sitting on floor. Yeah, आपकी प्रोफेसर से इतना इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो sitting on floor. So thank you so much. Thank you once again. Thank you. So on behalf of Gandhi Memorial National College, I take this opportunity to extend our sincere gratitude to Dr. Gaurav Khanna for such an eye-opening and engaging session. Sir begin with how our brain functions and very simply connected it to the word of cybersecurity, reminding us that in today's digital era, our data itself is a product. He guided us on the importance of privacy settings and then surprised us with a shocking number of people spending hours on social media, online gaming and OTT. He also warned us about the dangerous spaces, dating apps, gambling, cryptocurrency and dark web also, while stressing the need on safe online timing. Sir, your words remind us of how screens affect our health. Equally striking was the point on body distortion, how we compare ourselves with things that don't even exist in reality. Through engaging stories, Sir explained categories of cybercrime and shared the golden rule. And what is the golden rule? Once something goes online, it never truly disappears. His insight on cyberstalking, cyberbullying and cyber grooming gave us a valuable lesson to carry forward. Thank you, sir, for turning complex concepts into such simple, memorable and impactful takeaways. Your session has not only informed us but also inspired us to be the more mindful, responsible and safe in digital world. And for my guests, I'm sure some of my budding daredevils here are already curious about dark web and surely gonna check it, right? Humble advice, don't. Your study is very good, but don't take it because it is risky. Okay? So with this note, you are free now. So just quickly, I would like the staff members to kindly present him a memento as a token of our love and remembrance.